Good afternoon, everybody. It's very good to have all of you back. I can see a lot of people who come back. Yesterday, we had a very good session. We had Gagan Narang not only attending the seminar with us, but he also contributed 5 new rifles and 5 new pistols. He offered it for para sports persons to come and train, and he's going to keep dedicated pistol and ammunition for them. So that was very, very wonderful news for us. This kind of support is amazing. Today we are going to be taking the introduction in the field of para powerlifting. Once again, we have a great deal to thank Sports Authority of India, Radhika Suriman ma'am, Sandeep Pradhan sir, and of course, Honorable Minister Kiran Rijiju sir for including para sports webinars in the curriculum of Sports Authority of India. So today's speaker is definitely somebody who is one who joined the world of parasports as one of the beginning stars who brought light towards the Paralympic movement of India. Rajendra Singh Rahelu is an Arjuna awardee and a bronze medalist in Paralympic Games Athens 2004. First ever Indian wheelchair bonded player to get a medal in Paralympic Games and first ever Indian para player to get silver medal in Commonwealth Games Glasgow 2014 and has 12 international medals to his credit. What an honor. And not only this, he has now been given a formal position of coach in Sports Authority of India, Gandhinagar. That is how empowering our sports are. That is how mainstream they are. I will also be introducing the stars of para powerlifting, Farman Pasha. He'll be able to join us, but we need to take his name because this is a para powerlifting event, the webinar, and we have to remember him also here. He's Arjuna awardee, 4-time participation in Paralympic Games, 3 medals in Asian Para Games 2010, 14 and 18, and has 20 plus international medals. 3 medals in Asian Para, that is Pasha's long history of medals. We have Sachin Chaudhary, Paralympian and bronze medalist in Commonwealth Games, Gold Coast 2018, and he has 8 international medals to his credit. But somebody, if we don't welcome and don't mention, I think this webinar is going to be incomplete. The lady who changed the face of powerlifting in India and has become a role model for many of women in disability. Doing powerlifting in disability is a very, very empowering message to the society that women in disability are no less. We're talking about Sakina Khatun, first female player in para sports to get medal in Commonwealth Games. She has 10 plus international medals, including silver medal in Asian Para Games 2018 Jakarta. As a woman myself, I feel very proud, and I hope many young girls and many women in disability are attending this webinar और वो इन सब एथलीट से बहुत कुछ सीखेंगे. हमारे चेयरपर्सन मैं मुनीश्वर सर को लेना चाहूंगी स्क्रीन पे प्लीज. कैन यू गेट मुनीश्वर सर ऑन द स्क्रीन? सैंडी, मैम उनका शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो उनको मैं कर रहा हूँ. वो हमारे चेयरपर्सन हैं पावर लिफ्टिंग के, और मैं उनकी अगर अचीवमेंट्स देखती हूँ, वो खुद भी एक अर्जुना अवार्डी है एंड इंटरनेशनल लेवल में 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं. एशियन रिकॉर्ड उनके हाथ है. कैटेगरी 1999 में ताइवान में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया. नेशनल लेवल 54 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज उनके नाम है. और ये सब जो मेडल्स एंड ये जो ग्रोथ ऑफ पैरा पावर लिफ्टिंग की है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुनीश्वर सर के. वी हैव नॉट देयर ही इज सर, वेलकम. वी वर मिसिंग यू एंड ओपनिंग एड्रेस में आप 2 लाइन बोलें, फिर हम रहेलू सर का जो सेमिनार है उसे अटेंड करेंगे.
जस्ट बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कुछ सुन नहीं पाया था बीच वाला। सर आप अपनी बात कहिए, हम आपकी बात सुनेंगे। चलो ठीक है। मतलब पैरा ऑफ कोर्स डिटेल में तो रेहलू बताएंगे ही, शॉर्टकट में बता देता हूँ। लेकिन पैरा आप पावर लिफ्टिंग, आई थिंक पैरा पावर लिफ्टिंग इंडिया में 1991 से हमने शुरू किया था। स्टार्टिंग में मैं अकेला ही पार्टिसिपेट करता था। आई एम द फाउंडर ऑफ इंडियन पैरा पावर लिफ्टिंग। जी सर। और उसके बाद में 94 से हम लोगों ने नेशनल शुरुआत की, और अभी 17 नेशनल्स हो चुके हैं। और हमारे प्रोड्यूस, और मेरे को इतना आज यानी गर्व महसूस हो रहा है कि फरमान बादशाह और राजेंद्र सिंह राहेलू आपके यहाँ स्पीकर करके आए हुए हैं, जो मेरे ट्रेनी रहे हुए हैं, और फख्र की बात है ये। सर मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि हम आपको एज अ स्पेशल गेस्ट, चेयरपर्सन ऑफ पावर लिफ्टिंग, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं सेमिनार में। और पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स करियर है वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। बिल्कुल मुझे याद है, बहुत अच्छे से आपके गाइडेंस के अंदर ही यू आर ऑल्सो द पैरालंपिक कमेटी महाराष्ट्र हेड, एंड आपके गाइडेंस में मेरा करियर शुरू हुआ था 2005 में। वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दीपा मलिक 2007 में हमारे यहाँ से शुरुआत की थी। आज वो 2005 में सर, 2005 में, हाँ 2005। तो वो अभी आज खेल रत्न है। यानी सही में नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स, ऐसी बात बोल सकते हैं। Thank you, and that is what sports gives us, long friendship. I have known 2005 से मैं रहेलू जी के साथ हूँ, और हम लोग स्पोर्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। आपके गाइडेंस में मैं रही हूँ। So this is what sports gives us. आपने ये याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, ये लंबी फ्रेंडशिप्स भी जो स्पोर्ट्स में बनती हैं, those are also amazing. So I welcome Rajinder Singh Rahelu. Please, you're most welcome to start the webinar, please. Thank you, ma'am. आपने पावर लिफ्टिंग के बारे में काफी कुछ बताया, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पावर लिफ्टिंग की फंडामेंटल्स की। पावर लिफ्टिंग के लिए क्या हमें पहले शुरुआत में चाहिए, और मेरी कोशिश है कि मैं ग्राउंड से लेके और इंटरनेशनल ओलंपिक तक की बात तो इसमें करूंगा। और मैं चाहूंगा संदीप जी आप स्लाइड शुरू करें। इसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हो? Yes. it थोड़ा सा टाइम लगता है जस्ट टू अपलोड। जी ओके जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं आज पावर लिफ्टिंग, फंडामेंटल्स ऑफ पावर लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, व्हाट पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग क्या है? वैसे तो स्पोर्ट्स के बारे में, पावर लिफ्टिंग के बारे में सब लोग जानते ही है, क्योंकि ये हमारा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वेबिनार है। जितने भी हमारे जुड़े हैं वो पैरा पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड ही होंगे। पर जैसे कि आप सबको पता है कि ये आज जो भी जितने भी वेबिनार चल रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है, और इनको लेटर ऑन पीसीआई के सभी हैंडल्स पे, और प्रेसिडेंट मैम दीपा मैम अपने हैंडल पे डालेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जितने लोग आज सुनेंगे उससे कहीं ज्यादा बाद में इनको देखेंगे सुनेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ से शुरू किया है कि जो भी प्लेयर पावर लिफ्टिंग करता है या शुरू करना चाहता है, तो मैंने शुरुआत 0 से शुरू की है कि डिफरेंस बिटवीन पावर लिफ्टिंग एंड पैरा पावर लिफ्टिंग। क्योंकि एक कंफ्यूजन रहती है कि पावर लिफ्टिंग क्या चीज है और पैरा पावर लिफ्टिंग क्या चीज है, और ज्यादातर जितने भी हमारे कोचेस हैं उनको भी पैरा पावर लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में कंफ्यूजन रहती है। अक्सर मेरे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये पावर लिफ्टिंग कैसे होती है। जैसे कि जो जनरल की पावर लिफ्टिंग है वो तो 3 इवेंट्स होते हैं, जैसे डेड लिफ्ट होती है, स्क्वाट लिफ्ट होती है, और बेंच प्रेस लिफ्ट होती है। और उन्होंने एक जो आईपीएफ है, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, उन्होंने पावर लिफ्टिंग के साथ साथ एक सिंगल लिफ्ट बेंच प्रेस शुरू की हुई है। और बेंच प्रेस के अलग कंपटीशन होते हैं नेशनल से लेके वर्ल्ड लेवल तक। ऐसे ही जो पैरा पावर लिफ्टिंग है इसमें एक सिंगल लिफ्ट होती है
जो बेंच प्रेस होती है वो स्पेशल डिजाइंड बेंच पे परफॉर्म की जाती है। और वो सिंगल लिफ्ट, एक ही मेडल की लिफ्ट होती है और एक ही मतलब इवेंट होती है हमारी। मैं चाहूंगा संदीप जी जो वीडियो है हम पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, पावर लिफ्टिंग कैसे करते हैं। आप प्लीज वीडियो शो करेंगे। राजेंद्र ने डाला है। कैसा चला आ रहा वीडियो है? काफी रुक रुक के चल रही है, जबकि इसमें स्मूथनेस होना बहुत जरूरी है ताकि इसके जो टेक्निकल फॉल्ट है हम उसमें देख पाए। मुझे लग रहा है थोड़ी आजकल इंटरनेट पे इतना लोड है बिकॉज जी ये लाखों करोड़ों लोग ये जूम ऐप को भी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा इसमें लैग आता है। डिपेंड जी करता है, बिल्कुल इंडिविजुअल बैंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। आप बोल बोल के साथ साथ समझाते रहें तो हाँ जी, आइडिया रहेगा। तो जी आप जैसे देख सकते हो कि एक ये व्हीलचेयर पे लड़का आया और उन्होंने बेंच के ऊपर बैठ के अपनी जो भी बेल्ट बेंच स्ट्रैप होते हैं, हमारे लेग स्ट्रैप होते हैं, उनको बांधने के बाद इन्होंने लोड अपने हाथ पे लिया और लोड हाथ पे लेने के बाद इनको एक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, स्टार्ट की कमांड दी जाएगी। स्टार्ट करने के बाद ये नीचे जाएगी और हल्का सा मोशनलेस होने के बाद ऊपर आ जाएगी। और ऐसे ये हमारी पैरा पावर लिफ्टिंग जो है ऐसे परफॉर्म की जाती है सिंगल लेफ्ट। और 3 अटेम्प्ट होते हैं और हम 3 अटेम्प्ट में जो भी मैक्सिमम बेस्ट लेफ्ट होती है, ज्यादा से ज्यादा वाली, वो काउंट की जाती है कंपटीशन में। थैंक यू संदीप। ये जी जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, जो पैरा पावर लिफ्टिंग है उसको पहली बार 1984 में न्यूयॉर्क में जो पैरालंपिक्स गेम हुई थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उससे पहले वेट लिफ्टिंग नाम से एक इवेंट होती थी पैरालंपिक्स में, जो कि लाइक ए बेंच प्रेस होती थी और उनको हम नीचे से उठाते थे। इस लिफ्ट में आपने देखा कि हमने ऊपर से वेट उठाया, फिर चेस्ट के साथ टच किया और फिर दोबारा हम ऊपर लेके गए। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग थी पावर इसमें पैरालंपिक्स में, वो नीचे जो चेस्ट लेवल से हमें ऊपर को पुश करना होता था। तो पहले वो वेट लिफ्टिंग चल रही थी और वो 1964 टोक्यो ओलंपिक से चल रही थी। और वो पहले पैराप्लेजिक यानी कि स्पाइनल कोड इंजर्ड पर्सन थे जो, उनके लिए थी। और धीरे धीरे उनमें फिर पोलियो जैसे जैसे उनमें इंप्रूवमेंट होती रही और उसके बाद फिर 84 में पावर लिफ्टिंग आ गई। 84, 88 और 92 में ये दोनों पैरा पावर लिफ्टिंग भी और वेट लिफ्टिंग भी दोनों चलती रही। और 94 में इसका इंडिविजुअल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है पैरा पावर लिफ्टिंग से, तब से लेके वेट लिफ्टिंग को निकाल दिया गया पैरालंपिक से। और तब से ये पावर लिफ्टिंग जो है, पैरा पावर लिफ्टिंग है, वो पैरालंपिक गेम्स का हिस्सा चलती आ रही है। जी नेक्स्ट प्लीज। फिर बात आती है कि जी हम पावर लिफ्टिंग कौन कर सकता है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आते हैं मनीश्वर सर को, बहुत से फोन जाते हैं, मुझे भी आते हैं, बादशाह जी को भी जाते हैं। और तो कौन कर सकता है? बड़ा सिंपल सा हमारा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन का कोई ज्यादा झमेला नहीं है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जिसकी एज 15 साल के ऊपर है और अपर बॉडी से फिट एंड फाइन है और उनकी मिनिमम और मैक्सिमम डिसेबिलिटी कोई भी, लेकिन मिनिमम का क्राइटेरिया वहां रखा हुआ है। जैसे कि हम मान ले के पोलियो में दोनों पैर का जो लेग डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर अगर है, जहां 7 सेंटीमीटर से ऊपर है तो वो एलिजिबल हो जाता है। और डार्फ की बात करें, अगर शॉर्ट जो हाइट वाले प्लेयर्स होते हैं, उनमें अगर लड़का कोई 145 सेंटीमीटर
से कम है, जहाँ उस तक है जो उससे कम है, और लड़की 140 सेंटीमीटर से कम है, तो वो एलिजिबल हो जाता है। ये मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है पावर लिफ्टिंग के लिए। तो जो ये तीनों कंडीशन करता है तो उनको वो हम पार्टिसिपेशन कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग क्यों? इसके मैं जो भी ये मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, ये मैंने अपने ऊपर जो मैंने झेले हैं उसके ऊपर ही रख के बनाए हैं। जैसे कि पहला इसका बेनिफिट तो यही है कि हेल्थ डेवलपमेंट, जो बॉडी फिटनेस रहती है, अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हो, जिम में जाते हो, तो आप फिजिकली फिट रहते हो, हेल्दी रहते हो। और दूसरा जो कारण है, मतलब इसका फायदा है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई प्लेयर स्पोर्ट्स करता है तो उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, उनको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। और तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बात करने की बात कर लें, कहीं जाना हो, कुछ परफॉर्म करना हो, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव होता है। और फोर्थ जो है, बहुत ही मतलब मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा फीचर है इसका, इंडिपेंडेंसी। यहां मैं बताना चाहूंगा कि याद करें सभी पैरा प्लेयर जो है, जब भी घर से पहली बार कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए निकले होंगे, चाहे वो स्टेट का था, या नेशनल का था, या डिस्ट्रिक्ट का था, उनके साथ उनके घर वाले या उनके दोस्त उनको लेके गए होंगे। लेकिन जब वो प्लेयर धीरे धीरे स्टेट, नेशनल, खेलते खेलते इंटरनेशनल तक पहुंचता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और मैं खुद की बात भी करता हूं, और मेरे जो अभी ट्रेनी है या उन सब की बात करता हूं, वो अकेले ट्रेवलिंग कर सकते हैं वाया ट्रेन, वाया कार, वाया फ्लाइट। तो इसमें इंडिपेंडेंसी बहुत आ जाती है उसमें। और तीसरा फैक्टर है सोशल स्टेटस। आपका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, मान लो कि प्लेटफॉर्म पे जाए, कहीं भी जाते हैं, और दूसरे जो हमारे डिसेबल साथी हैं जो कुछ नहीं करते, मतलब स्पोर्ट्स नहीं करते, तो उनको एक तरस की नजर से देखा जाता है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, और उनके लिए सोसाइटी की एक अलग नजर होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। और तीसरा फैक्टर, ये फैक्टर, अगला फैक्टर है फाइनेंशियल फैक्टर। और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर इकोनॉमिकली वीक फैमिली से उठते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट की भी काफी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और अगर वो मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट की वजह से वो कहीं बाहर दूर गांव या दूर शहर में नहीं जा सकते। और ये पैरा स्पोर्ट्स या पावर लिफ्टिंग करके आप एक ऐसे स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हो जहां बहुत सी अभी स्टेट्स जो है वो कैश प्राइज उन्होंने एट पार जनरल प्लेयर कर दिया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैश प्राइज है, अवार्ड है, वो एट पार है। तो एक फाइनेंशियल फैक्टर भी बहुत काउंट करता है ये इसका स्पोर्ट्स के लिए। और तीसरा जो फाइनल है, और भी बहुत से हैं, लेकिन मैंने जो फाइनल किया है इनको, वो है एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। वर्ल्ड को अनुभव करने का एक मौका मिलता है स्पोर्ट्स में, और उससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाउ टू टॉक विद अदर्स, ये बहुत सी मैनर्स जो है हमारी वो आती हैं। नेक्स्ट प्लीज। एज ग्रुप, हमारे पैरा पावर लिफ्टिंग में 2 एज ग्रुप होते हैं, एक जूनियर और एक सीनियर। जो 15 साल से 20 साल तक की एज है वो जूनियर की है, और 15 से ऊपर कोई भी किसी भी एज का उसमें अपर लिमिट नहीं है, वो सीनियर एज ग्रुप में खेल सकता है। नेक्स्ट, हाउ पैरा पावर लिफ्टिंग। वैसे पैरा पावर लिफ्टिंग आज का विषय है, इसलिए मैंने हाउ पैरा पावर लिफ्टिंग लिख दिया। अगर पैरा स्पोर्ट्स भी होता तो वो सेम रहता। दीपा मलिक मैम के सामने अगर मैं ये बातें बोलूंगा तो मुझे लग रहा है मैं उस लेवल का नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जो अनुभव किया है वो मैं आपको थोड़ा शेयर करूंगा। 5D फॉलो करनी पड़ती है किसी भी प्लेयर को, पैरा पावर लिफ्टर जहां किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को 5D को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुकाम है जहां, ऐसा कोई कंपटीशन है, एक लेवल है जहां आप नहीं पहुंच सकते। पहला है ड्रीम।
ड्रीम मीन्स इमेजिनेशन। अगर आप किसी चीज को इमेजिन कर लेते हो तो 50% तो आप वहीं आप जीत जाते हो, जहां उसके पहुंच जाते हो। सोचना पहले तो अपने मन में लेके आना कि हमने ये करना है, वहीं काफी हमारी 50% हमारा काम वहां तक हो जाता है। और ड्रीम देखने के बाद फिर डिटरमाइन करना होता है, डिटर्मिनेशन, एक संकल्प करना होता है कि ये काम मुझे करना है। ये दो चीज हो जाने के बाद फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और ट्रेनिंग को पूरी डेडिकेशन के साथ अगर हम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुकाम है जिससे नहीं हासिल किया जा सकता। लेकिन ये सारी चीज की वैल्यू, ये ऊपर की चारों डी की वैल्यू नहीं है अगर स्पोर्ट्स लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स कैरियर। तो डिसिप्लिन तो रखना हमें पड़ेगा। इन पांचों डी को अगर फॉलो करेंगे तो आप सभी जो जिन सपना देख रहे हो वो सपना आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू। और आई थिंक दीपा होने से डी है, तो ये डी आई कैन सी फरमान ने हमें ज्वाइन करा हुआ है। मैं एक बार उनको लेंगे आप स्क्रीन पे, फरमान बादशाह को। मैंने अभी उनको ज्वाइन करते हुए देखा है। अनम्यूट करेंगे या मेन स्क्रीन पे लेंगे? मुझे लग रहा है उनके साथ सकीना जी भी होंगी साथ ही। जी तो बिल्कुल बिल्कुल जी, स्टूडेंट है। मैं उन, हाँ फरमान, सकीना कैसी है? मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? हार्टिएस्ट वेलकम। हमने आपका रेज्यूमे भी पढ़ा और सब आपको देखने, उनको मेन स्क्रीन पे लेंगे एक बार। ये आपने सुना, ये जो डी की कहानी अभी रहेलू जी ने अभी बताई है? हाँ मैडम। तो आप भी पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं, और जो पहला कंपटीशन में आने के बाद, बैंगलोर में जाने के बाद जो पहला पर्सन मुझे मिले थे वो फरमान बादशाह जी थे। मुझे पता था आप ये बोलेंगे, मेरे को सबके सामने बोलेंगे। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। एंड और इन लोगों को वार्म अप एंड जिम करते हुए देख के भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी। तो फरमान सर कहते हैं, रहेलू सर कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक अच्छा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन बनने और पैरा लिफ्टर बनने के लिए डी जो दिए उन्होंने, ड्रीम, डिटर्मिनेशन, डू द ट्रेनिंग, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आपका क्या एक्सपीरियंस है? और आपकी अपनी स्टूडेंट है सकीना जी, उन्होंने वो हैं आपके साथ। सकीना थोड़ा आगे आई। यस, वेलकम दैट Sakina. Can we get her on the main screen? She is the lady behind powerlifting in India, the first woman ever. What an honor, what an honor. And आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? सकीना जी, कैसा लगता है? क्या ये बात सही है कि सपना देखना और मेहनत करना, ट्रेनिंग करना और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रखना ही एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनाता है? हाँ बिल्कुल सही है। सही है। और एक सवाल और पूछूं कि एक महिला होते हुए और एक मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे थोड़ा सा, जैसे अभी भी आपने अपना ये पहना है हिजाब, तो एक पावर लिफ्टिंग जैसा इवेंट, क्या आपको किसी ने रोका? सकीना, कैसे मोटिवेशन मिली? पहले हम तो सबको नमस्ते करना चाहती है। सबसे पहले विषय को आज साई को थैंक यू बोलना चाहती है, क्योंकि ये मंच बात करने के लिए मौका दिया। तो मैं तो पहले से बहुत मतलब एकदम बांग्लादेश बॉर्डर का पास ही है, खेड़े गांव से। तो जिम का फैसिलिटी बहुत दूर दूर जाना पड़ता। जैसे घर से निकल के 2 घंटा मतलब 2 किलोमीटर चल के जाके बस पकड़ना, उसके बाद बस में बैठ के 1-1.5 आवर जाना, फिर बस से उतर के जिम जाना तो 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना, फिर वहां जाके जिम में जाके प्रैक्टिस करना। तो बहुत मुश्किल है। सुबह निकाले तो कभी कभी शाम हो जाते है, एक बस मिस होगा तो 2-3 आवर वेट करना दूसरा बस के लिए। तो मैं सुबह निकालती तो शाम हो जाता है ऐसे घर आने जाने। तो बहुत मुश्किल था फिर प्रैक्टिस करने के लिए। पर घर से निकलने देते थे आपको? आपको किसने बताया कि पावर लिफ्टिंग करनी है? वो तो दाबस सर, पोषण भैया बताया, फरमान सर से इंट्रोड्यूस किया। एक बार बेंगलोर कांतिरावा में मिला था, फरमान सर से मिला, तो फरमान सर बोला इतना आसान बात तो नहीं है, सब लोग प्रैक्टिस करने का ऐसा बोलता है।
तो इसको बात छोड़ के चले जाता, थोड़ा दिन आके फिर चल के चले जाता ठीक ऐसा। तो इतना आसान बात नहीं है। फाइनली फिर आपने सीरियस ट्रेनिंग कब ज्वाइन करी सकीना? हाँ, कब सीरियस ट्रेनिंग कौन से साल से स्टार्ट किया फिर आप? 2010। और फिर वहाँ बैंगलोर आए आप, बंगाल से बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा? 2010 में मैं बैंगलोर आया और खेलने के लिए आप 2010 में बैंगलोर आया और फरमान सर को साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक साल मुझे पीछे पड़ने लगा, प्रैक्टिस करना आना कैसे किधर। तो फरमान सर बोला तुम एक लड़की हो के कौन जमींदारी उठाएंगे ऐसा, और बैंगलोर शहर में जीना तो बहुत मुश्किल है, कोई स्पॉन्सर तुम्हारे पास है तो आ जाओ करके बोले। तो मैं बहुत मुश्किल से एक स्पॉन्सर ढूंढा। स्पॉन्सर ढूंढने के बाद फिर फरमान सर के पास आ गया। बहुत खूब। और आप कैसा लगता है सकीना, आप सबके लिए एक मिसाल हो, आप इतनी बढ़िया पावर लिफ्टर बनी हो, 10 साल की कड़ी मेहनत। तो आई थिंक थैंक यू सकीना फॉर इंस्पायरिंग हम सबको। फरमान, थैंक यू फॉर गिविंग अस सकीना खातून, वी आर वेरी प्राउड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये एग्जाम्पल है अपने आप में, एक सपना लेने का, उस सपना जीने के लिए डिटर्मिनेशन रखने का, और फिर ट्रेनिंग करने के लिए अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर, जिद लगाकर नए शहर में आकर फिर ट्रेनिंग करना, और उसको लगातार आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, 20 साल मतलब 10 साल से लगातार ट्रेनिंग एक डिसिप्लिन के अंदर उस मेडल को तैयार करता है। सो थैंक यू, आई थिंक दिस इज रियली इंस्पायरिंग। Go ahead, Rahelu ji, we can move to the next slide. जी, continue. Farman sir ko we can mute Farman Basha, and we can unmute Rahelu sir. I think he left, ma'am. He wants to join. I think आज हम लोग को ये आज I think उसका बता, sir has joined. Yeah. आप हाँ उनको join कर लिया है. This is due to the net issues. Yes. मीनवाइल मैं आप लोगों को फिर से अर्ज करती हूँ, गूगल फॉर्म्स भरिएगा, अटेंडेंस में जरूर अपना नाम, डेजिग्नेशन एंड प्लेस जहां से आप ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज चैट रूम में, चैट बॉक्स में लिखते रहिए, बिकॉज दैट बिकम्स आवर अटेंडेंस। हैव यू फाउंड रहेलू सर? जी, लेट्स गो अहेड। जी हाँ जी, हाँ बोलिए। तो बिगिनिंग ऑफ पैरा पावर लिफ्टिंग, जी बिगिनिंग ऑफ पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है, तो मैं नए स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, नए प्लेयर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोकल जिम में जाके कंडीशनिंग पर्पस पहले जिम ज्वाइन करें, उसके बाद फिर टेक्निकल एक्सपर्ट के पास अप्रोच करें। क्योंकि यहाँ का अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं गांधीनगर का, तो हमने 2 महीने 6 महीने पहले एक इंडक्शन असेसमेंट कैंप रखा था यहाँ पर। तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी आ गए थे जिनको रॉड पकड़ना नहीं आता था, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर पावर लिफ्टिंग के लिए सूटेबल नहीं था। तो मैं जो पहले ये बोलना चाहूंगा सभी को कि पहले We lost him again. Yes, ma'am. We lost him again. Okay, we wait for him. Till then, Munishwar sir is there. Munishwar sir would like to read the slide till sir joins. Can you hear me? हाँ जी, Munishwar sir, if you can explain the slide, आप explain करें जब तक रहेलू आते हैं, because we have limited time. स्टार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, जैसे अभी राजेंद्र ने बताया कि किसी भी जिसको भी पावर लिफ्टिंग करने में इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स इसके पहले मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं कि पावर लिफ्टिंग ऐसा इवेंट है कि जिसमें डिसेबिलिटी बेस्ड कैटेगराइजेशन नहीं होता है। उसमें बॉडी वेट
शरीर सर भार वो के आगे अनुसार बॉडी वेट, आगे की स्लाइड में है। इसलिए वो आगे है जी सर। सर। अच्छा अच्छा, राजेंद्र इज बैक। राजेंद्र आप कंप्लीट करें। यस जी जी सर। सर हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, वो तो हम हाँ आप जी कंप्लीट कर सर। रहे थे, बोलिए बोलिए। थैंक यू मैम। तो अगर कोई भी मतलब आपको गेम करनी है तो उसके लिए कंडीशनिंग फिट करनी पड़ेगी मतलब ट्रेनिंग के लिए। और नेक्स्ट जो हमारी है पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट, अगर टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट में अगर आप पार्टिसिपेट रहेलू करना सर का है कैमरा ऑफ तो करें हमें तो बेटर रहेगा। रहेलू सर का सिर्फ ऑडियो रखें, कैमरा तो उससे उनको इजी मिलेगा एक्सेस। ओके। हाँ फिलहाल के लिए, क्योंकि तो अभी आपकी आवाज। जी 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 मैम। पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए हमें अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट जो पैरालंपिक एसोसिएशन है उनके साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के हम किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना स्टेट में या नेशनल में या इंटरनेशनल में। तो अगर कोई प्लेयर अच्छी गेम करता है वो सीधा पावर लिफ्टिंग के लिए नेशनल नहीं आ सकता, तो उसको पहले स्टेट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई एम ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, जैसे अभी सर ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी है, तो यहाँ दो तरह की क्लासिफिकेशन पैरा पावर लिफ्टिंग में है। पहली है मेडिकल क्लास और दूसरी है बॉडी वेट क्लास। मेडिकल क्लास, देयर आर ओनली वन मेडिकल क्लास फॉर ऑल 8 एलिजिबल एम्पायरमेंट्स। 8 तरह की एम्पायरमेंट के लिए हमारे एक ही क्लास है। और मेडिकली हम इनको अगर देखा जाए तो अम्पेयर्ड मसल पावर, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइपरटोनिया, अटैक्सिया, एथेटोसिस एंड अम्पेयर्ड पैसिव रेंज। ये मेडिकल लैंग्वेज में 8 तरह की जो डिसेबिलिटी एम्पायरमेंट है उनको पावर लिफ्टिंग में कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं जनरल अगर बोलूं, आम भाषा में बोलूं तो बोल सकते हैं कि पोलियो वाले और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन है और डार्फ जो शॉर्ट स्ट्रेचर कम हाइट के हैं और अम्प्यूटी जिनके पैर, एक पैर या 2 पैर कटे हुए हैं, ये चारों कैटेगरी एक ही बॉडी मेडिकल क्लास में खेलते हैं। और नेक्स्ट है हमारी बॉडी वेट क्लास। बॉडी वेट क्लास, देयर आर 10 बॉडी वेट क्लास फॉर मेन एंड 10 बॉडी वेट क्लास फॉर विमेन। नेक्स्ट प्लीज। ये बॉडी वेट क्लासेस हैं। आई थिंक वी लॉस्ट रहेलू सर अगेन। नहीं आ गए, थैंक वापस। आई थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये मैंने 10 जो मेन और 10 मेन और 10 विमेन कैटेगरी यहाँ एक्सप्लेन की है। जब भी हम अपना ये प्रेजेंटेशन को शेयर करेंगे तो ये सब उसको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट। मेरे को यहाँ पे एक डाउट है रहेलू, सॉरी इट माइट साउंड वेरी नॉविस, बट क्योंकि हम ये अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछूंगी। जब हम ये बॉडी वेट क्लास करते हैं, सो एग्जैक्टली इतने ही केजी का इंसान होना चाहिए? जैसे अगर आप किसी को 41 केजी में मान रहे हैं, तो क्या वो 41 केजी के नीचे होना जरूरी है, या मतलब इसका एग्जैक्ट 41 होना तो बड़ा मुश्किल होता है? तो क्या एग्जैक्ट नहीं होता, ये जो क्लास है उस अप टू दैट क्लास। अगर हम 41 की लड़की की बात कर रहे हैं तो वो 41 से कोई भी वेट हो सकता है, उसको 41 कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो 45 कैटेगरी की लड़की है तो 41.01 से शुरू करके 45 केजी तक का जो जितना बॉडी वेट है सारे 45 में ही कंसिडर किया जाएगा। मुझे यही पूछना था कि द रेंज इज बिटवीन, मतलब 5 केजी की वो या जो भी गैप है उसकी रेंज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 45, एक बार पीछे जाएंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 59 केजी का मेन है
तो वो 54.01 से लगा के, पर 59 के ऊपर नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल जी ओके। कभी ऐसा डिसएडवांटेज भी होता है कि आप तैयारी एक क्लास की एक एम लेके कर रहे होते हैं, लेकिन हल्का वेट बढ़ने की वजह से फिर कंपटीशन में आप अगली कैटेगरी में जाते हैं तो वो हैम्पर हो सकता है। तो आई थिंक वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस इवेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसके लिए ऐसा ही होता है, जैसे पहले हम पीसीआई जो भी हमारी एंट्री इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है तो वो हमारा बॉडी वेट कंसीडर किया जाता है वहां, लेकिन कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले एक दिन पहले हमारी टेक्निकल बॉडी वेट चेंज करना चाहते हैं, बॉडी वेट क्लास चेंज करना चाहते हैं, तो मिनिमल फाइन देके थोड़ी पेनल्टी देके हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चेंज नहीं करते, डायरेक्ट वेन के लिए चले जाते हैं, तो फिर हमें एग्जैक्ट वही वेट देना पड़ेगा जिसमें हमारी कैटेगरी में भेज रखा है हमने। अगर उसमें वेट में हमारी उस कैटेगरी में हमारा वेट नहीं आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो, आपको खेलने की अनुमति नहीं रहती। जी ओके, नेक्स्ट प्लीज। फिर लाइसेंसिंग तो सारी पैरा स्पोर्ट्स के लिए अभी मैंडेटरी है। अगर हम नेशनल खेलनी है तो आईपीसी से पीसीआई से, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। अगर हमने इंटरनेशनल खेलना है तो आईपीसी से लाइसेंसिंग करनी पड़ती है। और लाइसेंसिंग तो करनी है, उसको साथ में हर साल उसको रिन्यू भी करना है, रिन्यूएशन भी होनी चाहिए कंटिन्यूसली। अगर हम अपने लाइसेंस को नहीं करते तो भी हम एलिजिबल नहीं होते कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स जो पावर लिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं वो एक स्पेशल डिजाइंड बेंच है जो कि आईपीसी पैरा पावर लिफ्टिंग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अप्रूव्ड है। और बारबेल सेट, ये दो मेन सेट मतलब इक्विपमेंट्स हमारे हैं कंपटीशन के लिए। उसके बाद हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स रख लो या कॉस्ट्यूम रख लो, वो रेस्ट बैंड है, वेस्ट बेल्ट है और मैग्नीशियम पाउडर है और लेग स्ट्रैप वगैरह है। ये हमारे इक्विपमेंट्स पावर लिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है मसल्स। ये मसल्स का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि जब भी कोई प्लेयर जिम में जाते हैं, पावर लिफ्टिंग आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब पावर लिफ्टिंग की नॉलेज हो जाती है तो हो जाते हैं, लेकिन पहले वो बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग शुरू, क्योंकि ज्यादातर जिम में ऐसा होता है कि आपको फिट दिखना है, थोड़ी कट्स वगैरह दिखने चाहिए और अच्छा, तो इसलिए मैं ये मसल्स यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके बारे में कि पावर लिफ्टिंग अगर हमने करनी है तो हमें इन जो मेनली 4-5 मसल है इनके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। पहला है ट्राइसेप ब्राची और पेक्टोरल मेजर और डेल्टॉइड फ्रंट मसल और बैक के 4 मसल जो है ट्रेपेजियस, रोटेटर कफ है, रेम्बॉइड मसल है और लैट्स वगैरह है। इन चारों मसल के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे तो बेंच प्रेस या पावर लिफ्टिंग में हम अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट, जब भी हम जिम में जाते हैं जहाँ हमारी ट्रेनिंग रूम में होते हैं, हमारे वार्म अप रूम में होते हैं, तो हमें प्रिकॉशंस बहुत रखनी चाहिए हर प्लेयर को, बेशक एक किसी भी लेवल का हो, क्योंकि एक ये वेट लोडिंग हमारी इवेंट है। 100 से ऊपर 150-200 तक वेट हम अपने हाथ पे लेते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस होनी चाहिए। पहली तो यही है कि आप प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन में ही ट्रेनिंग करें अगर पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि ये मसल स्पेसिफिक है और उसकी इंटेंसिटी, वॉल्यूम, लोड, इनका एक तालमेल होता है और इसकी रिकवरी भी होती है। इन सबको देख के एक ट्रेनिंग प्लान बनता है, ट्रेनिंग प्लान बनता है, उसके हिसाब से ही ये अगर करेंगे तो हम इंजरी को प्रिवेंट कर पाएंगे। दूसरा ये है कि सपोर्टर, जैसे कि हमने अपने हाथ पे लोड लिया तो दोनों साइड पे सपोर्टर मस्ट। सचिन है हमारे साथ, आई थिंक वी लॉस्ट, तो एक बार हम सचिन को भी हेलो बोल दें। जी हेलो
सचिन जी शायद म्यूट है। ये रहीलू सर की आवाज है? जी बिल्कुल। हाँ, तो आप कंटिन्यू करें सर, मुझे लगा आप की सचिन आवाज चली गई। हाँ, यू कंटिन्यू पहले आ हम गए। सचिन जी है पहले। सचिन जी है जी, सचिन जी है। सचिन जी से बात करते हैं। प्लीज से हेलो टू सचिन। हाँ जी सचिन जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार, बट कैन मेरा आई गेट हिम नमस्कार। ऑन द मेन स्क्रीन? आई कांट सी सचिन। He's on the main screen, man. I have spotlighted him. लेकिन मेरी तो स्लाइड ही नजर आ रही है। मैम हाँ नहीं दिख रहा है हमें। आपकी स्क्रीन में थोड़ा आप ये चेंज करो मैम, तब आएगा। स्पीकर व्यू करिए मैम आप अपने स्क्रीन पे। ओके, We can see him. He's on the spotlight, मैम। सबको नजर आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी हाँ जी। आई कैन सी सचिन नाउ। हाँ जी सचिन, रेड टी शर्ट, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। सचिन वेलकम। एंड सचिन, हाउ हैज बीन योर जर्नी? कैसा पावर लिफ्टिंग का जर्नी रहा है? कोई यंग पावर लिफ्टर्स के लिए कोई मैसेज या कोई चैलेंज जो आपको आज भी सबसे ज्यादा नजर आता है पावर लिफ्टिंग के लिए? सभी को मेरा नमस्कार। और ये बहुत ही, मैं पहले कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और साई का, हमारी मदर फेडरेशन है पैरालंपिक इंडिया का, बहुत अच्छा ये मूवमेंट है जो हम चला रहे हैं ये। और जहाँ तक पावर लिफ्टिंग की बात है, आज हम जहाँ भी हैं, मैं हूँ, मेरे जो सीनियर हैं, हम जहाँ भी हैं अपने गेम की वजह से हैं, फेडरेशन की वजह से हैं। और हमने काफ़ी कुछ गेम्स अचीव किया है देश के लिए। हम ओलंपिक में खेले हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट रहे हैं, एशियन गेम मेडलिस्ट रहे हैं, और हम सब साथी रहे हैं और सबका एक दूसरे का सहयोग किया है। दीपा जी भी हमारे साथी रही हैं खेलने में, इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। बहुत देख के गर्व होता है जब सुनते हैं, हमेशा से बहुत गौरवान्वित होते हैं। और जहाँ तक पावर लिफ्टिंग के चैलेंज की बात है, ये बहुत ही एक स्ट्रेंथ गेम है, टोटली स्ट्रेंथ गेम है, एज पैरेलल एज द जनरल कैटेगरी पीपल। क्योंकि इसमें सिर्फ वेट देना और हमें वेट उठाना है। हमें पता है कि सभी खेलों में बहुत ज्यादा परिपक्वता होने की जरूरत है, बट ये इस टोटल स्ट्रेंथ बेस्ड गेम है, डाइट बेस्ड गेम है। और इसमें एज गुड एज हम इसे पैरालिफ्टिंग भी कह सकते हैं, पैरा वेट लिफ्टिंग कह सकते हैं। इसमें हम बॉडी वेट देते हैं और सिर्फ बॉडी वेट उठाते हैं, हम वेट उठाते हैं इसमें। और मैं ये कहने के लिए बहुत ही फक्र महसूस कर रहा हूँ कि जो हम वेट उठाते हैं, हम ये दुनिया के जो जनरल खिलाड़ी हैं, हम उनको भी हरा के उठाते हैं। मतलब हम जो पैरा पावर लिफ्टर हैं, उनकी बराबरी जनरल प्लेयर भी नहीं कर पा रहे हैं वर्ल्ड में। ये शायद आपको हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, राजेंद्र सिंह रहेलू, आगे बताएंगे कि जो पावर जनरेट कर रहे हैं, वो जनरल खिलाड़ी भी पावर लिफ्टिंग में जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी रिपोर्ट बताते हैं। और जो हमारे नए पावर लिफ्टर आ रहे हैं, हिंदुस्तान के भी और वर्ल्ड के भी, मैं कहना चाहता हूँ, ये टफेस्ट स्पोर्ट्स है। बहुत ही इसमें लगन, सभी खेल में होता है, लगन मेहनत चाहिए ही। बट मैं देखा है अपने सामने बहुत से खिलाड़ी को आते हुए और पावर लिफ्टिंग से दूसरे खेल में मूव करते हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करें और अब वेट उठाएं थोड़ा। इसमें हमें एक अभी पैरालंपिक गोल्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पावर लिफ्टिंग में। तो मैं आने वाले खिलाड़ी खुद से भी अपेक्षा रखता हूँ, मेरे साथी खिलाड़ियों से अपेक्षा रखता हूँ कि हम पैरा पावर लिफ्टिंग में अपने देश के लिए पैरालंपिक्स में एक गोल्ड जरूर लेकर आएंगे इस बार। ये मैं दीपा जी से भी, हमारी जो मैम है, चेयरपर्सन है, उनसे मैं कमिटमेंट करता हूँ कि इस बार हम श्योरली गोल्ड लाने की कोशिश करेंगे पैरालंपिक्स में। Wish you all the best, and I think nothing better than that for a person in my position. एक गोल्ड और आएगा तो बहुत बहुत पैरा स्पोर्ट्स का ग्रोथ में सपोर्ट देगा, बिकॉज हर मेडल से अवेयरनेस आती है। रियो के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत चेंज आया है पैरा स्पोर्ट्स के प्रति। एक क्वेश्चन आया है, आशा जी पूछ रही हैं कि बेंच का क्या डायमेंशन होना चाहिए? जी, बेंच के एक पर्टिकुलर डायमेंशन है हमारे यहाँ, रहेलू जी ने रहेलू सर, आप आगे ये स्लाइड में इंक्लूड होने वाला है? जी स्लाइड में है। ओके, फिर तो हम अपनी इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सचिन, कीप वर्किंग हार्ड। हाँ जी रहेलू सर, वी कैन कंटिन्यू। अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ जी हाँ जी, शुरू करें जी? हाँ बिल्कुल करें सर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर किट। प्रॉपर किट के साथ हम जो पावर लिफ्टिंग है वो प्रॉपर किट के साथ ही करना चाहिए।
लेग स्टेप्स होते हैं बेंच के साथ हमें स्टेबल करने के लिए। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि एक खिलाड़ी जब बैठता है, अगर जैसे सचिन ने बात की है, जनरल प्लेयर अपने पैर जमीन के ऊपर ग्रिप करके अपना बैलेंस बना लेता है, लेकिन हमारे लिए जो एक बेंच के ऊपर स्पाइन पोजीशन में लेटना होता है, हमारे पैर जमीन के ऊपर टच नहीं होते और सपोर्ट नहीं करते, तो हमें लेग स्टेप जो होते हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं जो वो लेग स्टेप नहीं बांधते, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि लेग स्टेप बांध के ही कंपटीशन करना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। और नेक्स्ट है रिस्ट बैंड है। हमारे इतना लोड हम उठाते हैं, मतलब हमारे प्लेयर उठाते हैं, और वो अगर रेस्ट में कोई रेस्ट जॉइंट में कोई प्रॉब्लम ना आए तो रेस्ट बैंड होना चाहिए। और वेस्ट बेल्ट जो होती है, वेस्ट बेल्ट हमारे पेट में प्रेशर बना के एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए होती है, वो भी यूज होनी चाहिए। और मैग्नीशियम पाउडर तो इसलिए होता है कि हम अगर बेंच वो रॉड उठाते हैं तो हमारा जो हाथ है वो स्लिप ना करे, क्योंकि इतना वजन है, अगर कहीं से कुछ कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या उसके लिए प्रिवेंशन बचना चाहिए उससे। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा सभी को कि अभी हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट एक घटना हुई थी। एशियन पैरा गेम में हमारा एक प्लेयर था, वो उनके ऊपर वेट गिर गया था, तो उसका जो शोल्डर टेंडन, शोल्डर मसल और फ्रैक्चर ये हो गया था। इंडिया के अशोक है हमारे, अशोक मलिक, उनका हो गया था। तो मैं चाहता हूं कि बहुत प्रिकॉशन के साथ ये पावर लिफ्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। जी संदीप, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेइंग किट की। प्लेइंग किट, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक मैंडेटरी होती है, मैंडेटरी वो होती है जिसके बिना हम खेल नहीं सकते। वो कॉस्ट्यूम एक हमारा सिंगल लेयर का कॉस्ट्यूम होता है, जो ऊपर से लेके नी तक भी हो सकता है और पैर तक भी हो सकता है। और टी शर्ट राउंड नेक होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए और नॉन स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। उसमें वो स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए उसमें, और सिंगल कलर। और तीसरा है स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज, कोई भी स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए और नीट एंड क्लीन। ये जब भी हमारी कैट चेक होती है तो वो ये सारी चीजें चेक की जाती है। सॉक्स भी कोई भी स्पोर्ट्स सॉक्स ले सकते हैं। अगर हमारे पास फीमेल प्लेयर है तो उनकी जो स्पोर्ट्स ब्रेजर होती है वही अलाउ करते हैं, और दूसरा कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते, पैडेड या वायर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ऑप्शनल होते हैं वही जो पहले मैं बता रहा था कि रेस्ट बैंड, वेस्ट बेल्ट और हेड ड्रेस। हेड ड्रेस पहले ये सर के ऊपर बांधने के लिए हेड ड्रेस जो थी वो इस्लामिक फीमेल प्लेयर्स के लिए होती थी, लेकिन 2019 जनवरी में एक रूल आ गया है कि जनरल जो अपना प्लेयर है, मेल प्लेयर है, वो भी इसे यूज कर सकता है। जी ये है। नेक्स्ट अब आएंगे हम रूल्स, जो पैरा पावर लिफ्टिंग रूल्स हैं, जो नए प्लेयर तो सीखेंगे ही, जो कंपटीशन करते हैं नेशनल के इंटरनेशनल, उनको भी ये जानने बहुत जरूरी है। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको रूल्स का नहीं पता होता है, उसके कारण कई नुकसान हो सकते हैं। तो इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है: प्री कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड पोस्ट कंपटीशन। नेक्स्ट, प्री कंपटीशन फेज जो होते हैं वो है, पहला है रिपोर्ट टू कैट चेक एरिया। यहाँ कैट चेक किया जाएगा, उस एरिया को रिपोर्ट करना। सबसे अगर टाइमिंगली हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत बार बड़ी गेम में, जैसे ओलंपिक गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो हमें टाइमली किट चेक एरिया में रिपोर्ट करना है पहला। दूसरा है कैट चेक करना। कैट चेक करते समय टोटल जो मैंने अपने कॉस्ट्यूम बताए हैं वो एक अपने बैग में होने चाहिए। कोई भी कॉस्ट्यूम अपनी बॉडी के ऊपर पहना नहीं होना चाहिए, वो एक्स्ट्रा आपके बैग में होना चाहिए। एक एक करके वो सबको चेक किया जाएगा। और साथ में आईपीसी लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस एक मिलता है पावर लिफ्टिंग का, वो साथ में जरूर रखें, वो मत भूलें। अगर आईपीसी लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आपको वहां खेलने नहीं दिया जाएगा। एंड जो एक राकेश गुप्ता सर एक क्वेश्चन पूछे कि द कलर ऑफ द किट इज स्पेसिफाइड टीम वाइज, या हम कोई भी कलर पहन सकते हैं, या जब जैसे आप इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में किसी कंपटीशन में या वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो किट का कलर कैसे डिसाइड होता है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं।
Hello. Railu sir, can you hear me? मुझे जयदीप भी नजर आए थे, शायद जयदीप भी एक पावर लिफ्टर हैं। पहले जयदीप आप हैं वहां पे? जयदीप आप हम सबको हेलो बोल सकते हैं? हाय मैम, कैसे हो? बढ़िया मैम। और जयदीप आप खुद भी पहले एथलीट थे, हम इकट्ठे प्रैक्टिस किया करते थे और फिर आपने पावर लिफ्टिंग को चूज किया। ओके मैम। तो मैम पावर लिफ्टिंग, ओके मैम। हाँ, तो पावर लिफ्टिंग में जैसे अभी हम ये किट के कलर की बात कर रहे थे, तो उस पे आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? हाँ मैम, किट का कलर कोई भी चलेगा मैम, ये अपने कंट्री के ऊपर होता है, कोई भी कलर चलेगा। उसके कॉस्ट्यूम मिलता है मैम, हमें कॉस्ट्यूम पे कोई भी स्टिकर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इंडिया या उस कंपनी का नाम होना चाहिए मैम, बस सिर्फ। ओके। सो फरमान बादशाह भी हमें मैम, जवाब मैम, के दे रहे हैं कि मैम, प्लेन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फ्लोरल या उसके अंदर चेक या नहीं मैम। हो सकते, प्रिंट नहीं हो सकता, प्लेन कलर का कोई भी कॉस्ट्यूम चलेगा। एंड उसको फिर कंट्री जब अपना किट डिसाइड कर लेती है, एंड जैसा कि शायद हम लोगों को भी अपना किट अप्रूव कराना पड़ता है, जो जो एक कंपटीशन के अंदर कपड़े अप्रूव होते हैं वही कपड़े फिर पहनने दिए जाते हैं। तो हाय वो मैम। प्री कंपटीशन फेज में ये सब चीजें चेक होती हैं। और व्हाट इज द ट्रांजिशन लाइक जयदीप, एक एथलीट से पैरा एथलीट से, जैसे मैंने स्विमिंग करते करते अपनी बॉडी को एथलेटिक्स के लिए ज्यादा फिट पाया, सिमिलरली आप एथलेटिक्स करते करते पावर लिफ्टिंग में कैसे? मैम एथलेटिक में जैसे सबको बता कि डिस्कस हमारी शॉर्टलिस्ट हो गई थी रियो ओलंपिक में, इसलिए मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया। और मैम एथलेटिक में और पावर लिफ्टिंग में बहुत सारा डिफरेंट है, रूल में डिफरेंट है, इंटरनेशनल रूल में डिफरेंट है, और हमारी प्रैक्टिस करने में पूरा अलग मूवमेंट है। पावर लिफ्टिंग में सिर्फ एक मसल की, दो मसल की पावर यूज होती है, एथलेटिक में पूरी बॉडी यूज होती है। और रही रूल की बात मैम, पावर लिफ्टिंग में मैम जैसे कि एथलेटिक में हमारे लास्ट ओलंपिक के लिए लास्ट ट्रायल होती है, सिर्फ एक कंपटीशन में हम क्वालिफाई करें और हम जा सकते हैं। मैम पावर लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है, पावर लिफ्टिंग में बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है मैम, लास्ट 4 बड़े हीट कंपटीशन खेलने पड़ते हैं, उसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, एक क्वालिफाई कंपटीशन, उसके बाद में हम ओलंपिक के लिए जा सकते हैं। यदि हमने 4 कंपटीशन में से कोई भी एक कंपटीशन मिस कर दिया तो हम ओलंपिक के लिए नहीं जा सकते। ये पावर लिफ्टिंग सबसे जरूरी है मैम ये। ओके, तो तभी एक पावर लिफ्टर के लिए ये सारे कॉम्पिटिशन्स की एंट्रीज, ये सारे कॉम्पिटिशन में टाइम से जाना, और एंड आई थिंक कोविड के चलते ये अभी डिफिकल्टी आई थी, आप लोग एक कंपटीशन में जाने वाले थे और नहीं जा पाए थे, बट आई एम वेरी होपफुल कि अब जो नया कंपटीशन कैलेंडर आएगा कोविड-19 के बाद, आप लोग सब उसमें जा पाएंगे, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड जयदीप, आई मिस यू इन द ट्रेनिंग मैम एक ग्राउंड। चीज और मैम एक चीज और बोलिए। मैम जैसे कि मैं पावर लिफ्टिंग में आया हूँ मैम, पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल जाते ना मैम, हमारे कोई मसाजर नहीं मिलता मैम, यानी कि हमारी एक मसल यूज होती है मैम, मसाज। ओके, तो जयदीप ये वाले जो सजेशंस हैं आप चैट रूम में जरूर लिखिए, एंड ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें हम अबाउट पावर लिफ्टिंग सीख रहे हैं। अब हम इंडिविजुअली, ये दिस इज एन ओपन टू ऑल काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसमें आम लोग भी हमें देखें और सीखें। जो आपके इंडिविजुअल एज एथलीट चैलेंजेस हैं उसके लिए अब हम लोग ये ग्रुप मीटिंग्स करते रहेंगे। दिस हैज बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसमें हमें ये एक तरीका मिल गया है अपने अपने घर में बैठे एक दूसरे से बात करने का। तो आप लोग अपने बाकी एथलीट्स, बाकी स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी एनकरेज करिए इस मेथड को सीखने का। फिर हम लोग स्पोर्ट वाइज एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, सबके जो एथलीट्स हैं, जो पावर लिफ्टर्स हैं, उनसे मैं इंडिविजुअली मुखातिब होंगी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी रखेंगे एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, हम भी बैठेंगे so that we can create a better atmosphere and a smooth participation facility and training facility for our athletes. This is only about the sport and introduction of the sport. But welcome on board, and I miss you on the athletics field. चलिए रैलू सर आगे चलते हैं। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि वार्म अप एरिया में हम जब जाते हैं, वार्म अप करते हैं, तो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले 12 मिनट पहले हमें लाइन अप होना पड़ता है।
उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और जो पहली लिफ्ट है हम चेंज कर सकते हैं, जितना भी हम बॉडी वेट देते समय हमने अपनी फास्ट अटेम्प्ट दी हुई है, उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं कॉम्पिटिशन का 5 मिनट पहले उस लिफ्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये थे प्री कंपटीशन फेज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कंपटीशन फेज। जी, ड्यूरिंग कंपटीशन फेज में ये होता है कि टेक्निकल कंट्रोलर हमारे होते हैं। टेक्निकल कंट्रोलर हमारे एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, फील्ड ऑफ प्ले के सामने एंट्री गेट पे। वहां हमें रिपोर्ट करना होता है। अगर जब भी वो बुलाते हैं तो वहां पहुंचना होता है। वहां हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा नाम अनाउंस नहीं होता। हमारा नाम अनाउंस होने के बाद टेक्निकल कंट्रोलर हमें इंडिकेट करेगा अपनी लेफ्ट परफॉर्म करने के लिए, फील्ड पे जाने के लिए। तो उस नाम जब हम एंटर कर लेते हैं तब से लेके लिफ्ट को उठाने तक का 2 मिनट का समय हमें मिलता है। 2 मिनट के टाइम के अंदर हमें वो रॉड उठाना है। अगर हम 2 मिनट में नहीं उठा पाते तो हमारी वो लिफ्ट जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिफ्ट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है, जैसे ही हमने वो अपनी लिफ्ट जो क्लियर की है, जहां जैसा भी हमारा परफॉर्म किया है, उसके बाद जब हम आउट करते हैं प्ले ऑफ फील्ड से, तो वहां हमें नेक्स्ट जो अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट लेफ्ट है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है विद इन 1 मिनट। अगर हम 1 मिनट के अंदर अंदर वहां अपनी जो लिफ्ट रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 किलो वो अपग्रेड कर देते हैं। और ये बड़ी एक कठिन बात है कि दूसरी लिफ्ट अगर एक बार आपने दे दी, जहां ऑटोमेटिकली एक बार रजिस्टर्ड हो गई, तो हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ आके मैंने बताया है कि पहली लिफ्ट हम एक बार चेंज कर सकते हैं। पहली लिफ्ट हम देंगे बॉडी वेट देते समय और उसके बाद एक बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है कि 7 किलो आप कर सकते हैं, जहां फिर 7 किलो कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा जो वेट है उसको हम अप डाउन नहीं कर सकते। और लिफ्ट जो सेकंड लिफ्ट होती है वो चेंज ही नहीं होती, वो तो एक बार जो दे दी आपने उसको चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड जो लिफ्ट होती है उसको हम 2 बार चेंज कर सकते हैं। और वो कंपटीशन की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने उस पर्पस के लिए 2 टाइम उसको चेंज करने का यहाँ प्रावधान रखा हुआ है। तो चौथी लिफ्ट होती है जो रिकॉर्ड लिफ्ट होती है, लेकिन वो चौथी लिफ्ट सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही दी जाएगी। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड में खेल रहे हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, एशिया खेल रहे हैं तो एशिया रिकॉर्ड के लिए हम वो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन वो लिफ्ट हमारी मोर देन वर्ल्ड रिकॉर्ड के होनी चाहिए, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के या रिकॉर्ड के ज्यादा होनी चाहिए। बेशक वो 500 ग्राम, वैसे हमारी जो लिफ्ट है वो 1 किलो कर सकते हैं हम मिनिमम, 1 किलो से मतलब मिनिमम हम 1 किलो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड लिफ्ट जो होती है वो 500 ग्राम भी बढ़ाई जा सकती है मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा तो आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम 500 ग्राम आधा किलो बढ़ा सकते हो। के लिए काउंटेशन में नहीं भी किया जाता। नेक्स्ट जी। और रहीलू सर 1, 2 और 3 पॉइंट्स को रिपीट करने का एक बार रिक्वेस्ट आया है जी। हाँ, हमारे जैसे पैरा पावर लिफ्टिंग निपेंद्र कुमार चौरी हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि एक बार आप 1, 2, 3 पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर दें, तो वी विल जस्ट हियर इट अगेन। जी मैम जी। जैसे पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग में 3 अटेम्प्ट होते हैं हमारे। वो हम पहली अटेम्प्ट करते हैं जितना हम वेट देते हैं बॉडी वेट के समय, श्योरली कि वो कम ही होगा, और धीरे धीरे उसको हम अपग्रेड करते जाएंगे। मान लो कि एक लिफ्टर है वो 140 किलो उसकी कैपेसिटी है उठाने की, लेकिन वो कंपटीशन में जो अपनी फर्स्ट लिफ्ट देगा वो 140 किलो नहीं देगा, वो 130 या 125 किलो देगा कि ताकि वो कंपटीशन में एंटर कर सके। अगर ये तीनों लिफ्टें आप फाउल कर देते हैं तो आप एलिमिनेट हो जाते हो, तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। इसलिए जो पहली लिफ्ट होती है वो हम अपनी मैक्सिमम से, मतलब जो श्योर लिफ्ट होती है वही हम देते हैं, लेकिन वो बॉडी वेट देते समय और उसके बाद
एक बार हम उसको चेंज कर सकते हैं। मान लो कि एक आदमी ने 125 किलो फास्ट अटेम्प्ट दी हुई है, लेकिन उसको वार्म अप के समय लगा कि नहीं मसल थोड़ा टाइट है, जहां मसल बहुत रिलैक्स चल रहे हैं मैं और कर सकता हूं, तो वो 125 से जहां तो 132 कर सकता है, 7 किलो बढ़ा सकता है। मतलब 125 से 7 का मतलब ये है कि 26, 27, 28, 29 कोई भी, लेकिन 32 से 33 नहीं कर सकता। ऐसे ही वो 25 से 118 किलो हो सकता है, 117 किलो नहीं हो सकता। तो ये एक फास्ट अटेम्प्ट का जो एक रूल है कि 7 किलो अप डाउन फास्ट अटेम्प्ट की जा सकती है। और जो सेकंड अटेम्प्ट होती है, हमने मान लो कि एक आदमी ने 125 किलो फास्ट अटेम्प्ट क्लियर कर ली, लेकिन उसने दूसरी अटेम्प्ट भी तो करनी है, लेकिन उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं दूसरी लिफ्ट कितना लूंगा। उसने दूसरी लिफ्ट मान लो 135 दे दी, तो वो रजिस्टर्ड हो गई है। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वो वार्म अप रूम में जाता है और अपनी मसल देखता है, बॉडी देखता है, उसको लगता है कि ये तो यार टाइट है या रिलैक्स है, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। वो जो जितनी रजिस्टर्ड कर दी है उतनी ही रहेगी। इसलिए सेकंड अटेम्प्ट देते समय बहुत ध्यान से ही देनी पड़ती है। और तीसरी अटेम्प्ट जो होती है उसको हम 2 बार चेंज कर सकते हैं। एक बार तो आप दे सकते हो और उसके बाद 2 बार उसको अप डाउन कर सकते हो, और वो कितना भी अप डाउन किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है जी। और पोस्ट कंपटीशन फेज है जो, उसमें खिलाड़ी को जो वार्म अप एरिया है वो लीव करना पड़ता है। टेक्निकल कंट्रोलर हमें इंडिकेट करता है कि आप कंपटीशन जो वार्म अप एरिया है इसको इससे बाहर हो जाएं, क्योंकि और बाकी के जो ग्रुप है उनको भी वार्म अप के लिए स्पेस चाहिए होती है। लेकिन हमें वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है फॉर द मेडल सेरेमनी, अगर हम मेडल टैली में हैं। और डोपिंग टेस्ट अगर हमें नोटिफाई कर दिया गया है तो हमें डोपिंग टेस्ट के लिए वहां रुकना पड़ेगा। अगर ये दोनों बाई चांस नहीं है तो भी हमें वहां वेट करना पड़ेगा। हमें अपना जो आईपीसी लाइसेंस जो बेन के समय हमने वहां डिपॉजिट करवा दिया था, सबमिट कर दिया था, वो कलेक्ट करने के लिए हमें वेटिंग एरिया में रहना पड़ेगा जी। अब बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि जी हमें ओलंपिक खेलनी है, सिलेक्शन फॉर पैरालंपिक गेम्स। ये एक पावर लिफ्टिंग के लिए, पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। वो मैं ये बताऊंगा कि 4 साल में 4 कंपटीशन लगातार कॉन्सिक्यूटिव कंपटीशन कंटिन्यूसली 4 साल में 4 खेलने पड़ेंगे। अगर आप उसमें एक भी मिस करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। नंबर 2, उसमें 2 पैरा पावर लिफ्टिंग कप चैंपियनशिप होती है जो आईपीसी प्रूव्ड, जो मैं जिसे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलते हैं। 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है और एक रीजनल चैंपियनशिप होती है, एशिया, अफ्रीकन और यूरोपियन जो भी है उसमें, और एक ओपन कप जो अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्राइटेरिया में उसी के ऊपर उसी के बेस पे ऊपर बात कर रहा हूँ। आने वाले रूल चेंज होते रहते हैं, जैसे भी उसके टच में रहना चाहिए हर प्लेयर को। और हमें अपना MQS है वो टॉप 8, सॉरी यहाँ 10 लिखा है मैंने गलती से, लेकिन टॉप 8 में आपको रहना पड़ेगा। अगर टॉप 8 में आप नहीं रहते तो भी आपकी ओलंपिक सिलेक्शन नहीं होगी, कुछ भी करके नहीं जा सकते। एक कंट्री से एक ही प्लेयर जा सकता है, जैसे बहुत सी हमारे और भी स्पोर्ट्स है पैरा के जिसमें एक कैटेगरी 2 या 3 प्लेयर हम भेज सकते हैं एक ही कैटेगरी है। मान लो हमारे 3 प्लेयर या 2 प्लेयर भी मेडल ले सकते हैं सेम कैटेगरी में, लेकिन पावर लिफ्टिंग में सिर्फ एक कैटेगरी में एक ही प्लेयर पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया चैंपियनशिप के लिए थोड़ी सी ये हमें रिलैक्सेशन है कि हम एक कैटेगरी में 2 भेज सकते हैं, लेकिन हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 10 कैटेगरी में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2 कि हम 2 कैटेगरी को रिपीट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा कैटेगरी में हम डबल भी नहीं भेज सकते। ये हमारा इसका है। और जो स्लॉट मिलता है पैरालंपिक गेम्स का वो सिर्फ एलिजिबल एथलीट को मिलता है, वो एनपीसी को नहीं मिलता। मान लीजिए कि अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो हमारे पास 6 प्लेयर ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं पैरालंपिक खेलने के लिए, जैसे फरमान बादशाह जी हैं, सकीना खातून है,
सचिन चौधरी है, सचिन चौधरी है, और सचिन तेंदुलकर है वो हमारा। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और गोल्ड की बात करिए आज उसने ना, बिल्कुल जी बिल्कुल, और उसमें पोटेंशियल है, उसकी परफॉर्मेंस है गोल्ड मेडल के लेवल की, इसमें कोई डाउट नहीं है मैम। और हरियाणा से हमारे सुधीर हैं, और जयदीप हैं, और पंजाब से मनप्रीत लड़की है। तो ये 6 लोग एलिजिबल हैं, और 7वां मैं भी लाइन में हूँ, लेकिन अभी इंजर्ड हूँ, इसलिए मैं अपना नाम नहीं ले रहा। 6 प्लेयर हम इसमें है। अगर हम चाहें भी तो 7वां प्लेयर या 8वां प्लेयर इसमें एंटर नहीं कर सकते, इनमें से कम ही होंगे या यही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ये है। और इसी के कारण ही मुझे लग रहा है, जैसे सचिन ने बात की है कि बहुत से प्लेयर पावर लिफ्टिंग छोड़ के दूसरी गेम में जा रहे हैं, उसका एक मेन वजह तो ये हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी मेडिकल क्लासिफिकेशन वो जो एक ही कैटेगरी में होती है। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक जो मिनिमम डिसेबिलिटी का पर्सन है, मान लो कि एक पोलियो या डार्फ कैटेगरी का प्लेयर है, उसको स्पाइनल इंजरी पर्सन के साथ कंपीट करना पड़ेगा। और स्पाइनल इंजरी पर्सन जो है, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं दीपा मैम तो आपको तो पता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बाकी सबको कि हमारे पास एक प्लेयर है पैराप्लेजिक का, परविंदर सिंह, पंजाब से है, और उसने वर्ल्ड जो आईवास गेम है उसमें मेडल ले रखा है। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि बेंच पे लिटाने के लिए भी उसको 2 आदमी चाहिए, और बॉडी वाइब्रेट करने लग जाती है, स्टेबल होने के लिए उनको काफी टाइम लग जाता है। तो ये उनके लिए बड़ी वो गेम खतरनाक गेम हो जाती है कि अगर 2 मिनट से ज्यादा हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और दूसरा ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, मान लो कि एथलेटिक्स में हमारे सुनील सर और देवेंद्र जी यहाँ हमारे साथी हैं, तो वो नए नए प्लेयर जो हमारे मान लो कि मेडल की दावेदारी पेश करते हैं ओलंपिक में, उनको क्वालिफाई करवा सकते हैं मान लो कंपटीशन से 2 महीने 3 महीने पहले तक। लेकिन पावर लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है। मेरा अपना स्टूडेंट है, वो 160 बेंच लगा रहा है 49 कैटेगरी में, लेकिन वो ओलंपिक के लिए एलिजिबल नहीं है, बेशक उसकी परफॉर्मेंस कोई भी हो। इसलिए Hello. I think we have lost connection. मैडम कनेक्शन का ही प्रॉब्लम आ रहा है सब जगह, हमें तो बात ही नहीं करने वाला। Today is especially a very exhausted day on the net. क्योंकि पावर लिफ्टर्स करके कनेक्शन में डर गया है। There's a lot of power in the connect. So, can we have Munishwar sir is there? Maybe he can till the time Rajinder sir joins. मैडम एक बात कहनी थी हमें भी। हाँ जी पूछिए। Is not here मैम। मैडम मेन बात है कि ये पावर लिफ्टर खिलाड़ी के लिए जी इंजरी, आई थिंक उस पे इनकी स्लाइड अगली स्लाइड में इंजरी डिस्कस अभी हो रही है, पर हम बात कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप बादशाह सर आप बोलिए। नहीं बोलिए बिकॉज जब तक वो आते हैं वापस रूम में हम बात करते हैं जी। क्योंकि मैडम इसमें बहुत चांसेस है इंजरी होने के जी। ये तो पावर का गेम है, आपको पता है, सिर्फ ऊपर सिर्फ हाथों से ही होता है। तो इंजरी कभी भी हो सकती है, जब भी मैक्सिमम लेते समय या कभी भी जब रिपीटेशन करते समय कभी भी हो सकती है इंजरी, क्योंकि हम अपना बॉडी संभाल के चलना भी मुश्किल होता है। कोई व्हीलचेयर वाले हैं, कोई पैराप्लेजिक हैं, वो गिर जाते हैं तो भी इंजरी हो जाती है। तो व्हाट आर द बेस्ट वेज हाँ जी व्हाट इज द बेस्ट वे कि हम इंजरी अवॉइड कर सकें, क्योंकि आई थिंक इंजरी से बचे रहना भी एक एथलीट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप कितनी भी साइंसेस अडॉप्ट कर लें, आप कितनी भी डाइट खा लें, आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, लेकिन अगर आप इंजरी में चले जाते हैं तो फिर द होल प्रोसेस गोज वेस्ट। तो आप कुछ टिप्स दीजिए पैरा पावर लिफ्टर्स को इंजरी में न जाने के लिए। मैडम मेरा तो 2014 में इंजरी होके भी उसके बाद भी मैंने बहुत सारे मेडल लिए हैं, लेकिन मैं अपने बारे में ये नहीं कह रहा हूँ। 2014 में जब मैंने डॉक्टर से
ये करवाया था, दिखवाया था डॉक्टर सेंट जॉन्स के डॉक्टर से। तो उसी डॉक्टर ने इस बार मेरे को 2018 में ऑपरेशन किया और उन्होंने इस बार बोला कि पूरा 1 साल रेस्ट करने के लिए। ओके। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्लेयरों को इंजरी के ऊपर बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए कि प्लेयर को, जैसे आपने कहा कि अभी मैं बता दूंगा जैसे कैसे ध्यान रखना है। तो प्लेयर को ऐसे ध्यान रखना है कि पहले स्टार्टिंग में बेसिक से जाना है और अपने स्ट्रेंथनिंग करना है मसल को। तो साथ में प्लेयर की कंडीशन भी देखना है, कहीं से कौन सा प्लेयर कैसा है, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे में डिसेबिलिटी काउंट नहीं होती, हमारे सिर्फ मेरे लिए वेट होता है। ये पाशा जी, वेट मेरे करते हैं लिए ये बॉडी वेट और बहुत, लिफ्ट करने जाते हैं। जी मेरे को ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरा आता है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी काउंट नहीं होती तो जैसे हमारे थ्रोज के टाइम जो पावर हमें लगती है एथलेटिक्स में, एक शॉट पुट, वो भी एक वेट ओरिएंटेड स्पोर्ट है, तो उसको फेंकने के लिए लेकिन हमें कैटेगराइज किया जाता है कि भाई आपकी इतनी मसल काम करती है तो आप इनके साथ खेलेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी भी डिसेबिलिटी में कैटेगराइज नहीं किया जाता। और मुझे लगता है जैसे मेरा चेस्ट बिलो पैरालिसिस है और टॉर्सो मसल मेरी काम नहीं करती है और मेरी एब्डोमेन काम नहीं करती है, लो बैक काम नहीं करती है, तो जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम विद इन मेरा वीक होता है। तो सिमिलरली आप नहीं, लोग इसके कैसे अंदर वो मैनेज सब कर रहे काउंट नहीं हैं? किया जाता, नहीं किया जाता इसके अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनको डिसेबिलिटी के ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ता है। कोचेस कौन से प्लेयर को कौन से टाइम में क्या क्या कराना है, ये कोचेस को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि और कंपटीशन के टाइम आपको एज अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट या सीवियरली पोलियो सब एक जो साथ खेलते हैं। है, आप लोगों को फिर एम्प्यूटी के साथ फर्क नहीं पड़ता है? हाँ, सब एक साथ खेलते हैं, लेकिन एमपीटी के लिए कुछ वेट है, वो मुनीश्वर सर से पूछिए, मुनीश्वर सर बता देंगे आपको उनका वेट का। वेट जो अभी उनका बॉडी वेट समझो कि 50 केजी है, तो उनके उनके हिसाब से 50 केजी प्लस 1.5 केजी कुछ ऐड करते हैं। और बॉडी वेट। हम मुनीश्वर सर को एक बार लेंगे ऑडियो में। हाँ, ले लीजिए। हाँ, वो He has left. डिसेबिलिटी काउंट नहीं होती। Munishwar sir Lifting में is not in disability the count room, नहीं ma'am. आज हमारे पावर लिफ्टर्स का जो कनेक्टिविटी है वो वीक चल रही है। हाँ मैडम, लेकिन डिसेबिलिटी काउंट मैडम, आप भी मेरे साथ ही खेलना है अगर वो चल रहा है अच्छा से बंदा। नहीं, मेरी वहीं पे क्वेश्चन आती है पाशा जी, दैट अंदर की जो पावर है, कोर मसल की जो पावर आती है, वो आपको हर जगह हेल्प करती है। तो ये डिसएडवांटेज होता होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वालों का, जिनका नीचे का हिस्सा बिल्कुल डेड होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, कोर मसल फंक्शनल नहीं होती है, तो वो कैसे फिर कर पाते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसे रूल बना दिया है। और एक बात समझिए कि जो डिसेबल्ड है, ये है ना ड्वार्फ लोग, इनका इतना सेंटीमीटर करके है, उतना सेंटीमीटर तक उनका, तो वो डार्फ लोग बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, सब एबल की तरह ही करते हैं। उनका मूवमेंट, उनका एक्टिविटी सारे एबल की तरह ही है। उनके मसल देखिए सब एबल की तरह है, उनके हाथ इतने रहते हैं, लेकिन इतना स्ट्रांग होते हैं, हमसे भी ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं। अब तो वो डिसेबिलिटी में कहां से काउंट हो गए, उनके तो पावर ही पावर है। करेक्ट, फुल बॉडी फंक्शनैलिटी है, बस स्ट्रक्चर छोटा है। हाँ, स्ट्रक्चर छोटा है। तो दैट मीन्स थोड़ी डिसएडवांटेज आती है डिसेबिलिटी को लेके, बट यू ओवरकम दैट विद मेंटल आप स्ट्रेंथ। जैसे कैटेगरी वाले लोगों तो बहुत डिसएडवांटेज है। हाँ, बिल्कुल। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा गेम चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। कि पावर लिफ्टिंग अगर हम चूज कर रहे हैं तो क्या हम बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज्ड डिसेबिलिटी क्लास में तो नहीं है कि हम लोग फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या हम आगे लंबा नहीं खेल पाएंगे, या वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आ पाएंगे। नहीं मैडम, जैसे राजेंद्र मैडम, नहीं, इसमें जैसे राजेंद्र जी ने कहा था स्टार्टिंग में, डिटर्मिनेशन ड्रीम। हाँ, तो इसका एग्जांपल हमारे इंडिया में भी है, जो राजेंद्र के स्टूडेंट ही है, परमिंदर, वो पैराप्लेजिक है। करेक्ट, उनका जिक्र हो रहा था अभी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जानते होंगे। हाँ, तो वो भी 150 किलो के ऊपर लिफ्ट करते हैं। सैंडी, आप नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे इसके बारे में? पाशा, अगर आप देख सकते हैं और आप कुछ हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे स्लाइड को। We have Sachin Chaudhary is also.
अच्छा ये रिकॉर्ड्स है। हाँ हाँ रिकॉर्ड्स है। जैसे 49 केजी में पैरा वालों का रिकॉर्ड है 183.5 केजी। जी जी ठीक है। तो नॉर्मल में शुरू होता है 59 केजी से, पैरा में शुरू होता है 49, 54, 59, 65 ऐसे। अच्छा, तो कैटेगरी आप कंपेयर करवा रहे हैं कंपैरिजन। पैरा तो पावर इसके लिफ्टिंग को अंदर है एबल बॉडी पावर लिफ्टिंग या के या साथ? यस यस ओ नाइस। यस मैडम। तो ये तो आंखें तो खोल we are देने way वाला आप स्लाइड देखिए है, मैडम, बिल्कुल। हम बहुत आगे हैं। ये दो कैटेगरी एबल में नहीं है। जो 49 और 54 है ये लोअर वेट है। ये हमारे लिए, क्योंकि हमारे पैर नहीं होते ना पोलियो के। चलिए एक बार तो अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं कि 2 क्लास पर 59 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 59 केजी के हाँ जो जी हाँ फिजिकली चैलेंज पैरा पावर लिफ्टर हैं वो 211 उठा रहे हैं और एबल बॉडी 175 ही उठा पा रहे एबल हैं। जी एबल का तो हम काफी हाँ कम, मैम, और देखो। देखिए 65 में ऑलमोस्ट बराबर है, 72 में भी हमारे जो, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी मुझे इस चार्ट में तो कहीं दिख ही नहीं रही है। जी 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 And competition is of a very high Yes, level. yes. This is amazing. And I think Rahelu sir और has देखो joined मैडम us. 49 केजी का आई एम बैक। जस्ट जी आइए सर। जस्ट मैम आई एम बैक। हाँ जी हाँ जी, हम अभी सॉरी आप ही मेरा के रिकॉर्ड्स नेटवर्क को थोड़ी प्रॉब्लम आ डिस्कस रही कर है रहे जी। थे। जी 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 जी। और ये तो आपने देख ही लिया रिकॉर्ड, तो आपने डिस्कस भी कर लिया और देख भी लिया, दिस लेकिन इज अब मैं जो हाईली बताना चाहूंगा मोटिवेटिंग एंड अमेजिंग। कि हमें कौन कह सकता है जी कि बिल्कुल इसी आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। एंड ये स्लाइड को आप लोग अपने अपने फोन पे क्लिक भी करिए, आप लोग ये इसको मैं पहले शेयर बोल भी रहा था ये। करिए, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। मैं खुद भी स्लाइड को अब क्लिक करने जा रही हूँ जी क्योंकि Yeah. ये कंपैरिजन जी इज मेरे लिए खुद के लिए भी एक रेवलेशन जी है। दिस इज अमेजिंग। हाँ जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जी कैटेगरी जो है 59 से शुरू होती है, जो जनरल पावर लिफ्टिंग है, जी जी और हमारी 49 से शुरू होती है। और हमारा जो 49 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 183.5 का है, जो कि नियर अबाउट 3.5 टाइम मोर देयर बॉडी वेट। अपनी बॉडी वेट से 3.5 गुना ज्यादा उठाते हैं वेट। और 59 केजी एबल यहाँ बॉडी ये को मैं आपको देखूं, देखिए 10 केजी बॉडी हाँ वेट के जी डिफरेंस होते हुए और एबल बॉडी होते हुए बेंच प्रेस का रिकॉर्ड एबल बॉडी में 59 केजी पे 175 केजी है, बल्कि 49 केजी में हमारा वहाँ 183.5 केजी है। पैरा खिलाड़ी बिल्कुल बहुत पैरा मैम, खिलाड़ी जो 10 केजी कम वेट में खेल रहे हैं और बहुत आगे। जी डिसेबिलिटी में बिल्कुल भी मैम। है। सो दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ ये रेवलेशन। पैरा का ओनली स्पोर्ट्स है जिसमें हम जनरल से भी आगे परफॉर्म कर रहे हैं। ये गर्व की बात भी है, बट जी सभी बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं, बट हम इनसे बहुत आगे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। बहुत, आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टुडे टू it's very motivating to see this slide. थैंक यू मैम। हाँ जी और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में भी हमारे लीजेंड प्लेयर हैं फरमान बादशाह जी, जो अपनी बॉडी से 3 गुना से ज्यादा बॉडी वेट उठाते हैं। उनकी जो बॉडी वेट कभी भी रहता है वो 46-47 के आसपास रहता है, और वो 160 लगता उनकी नहीं शरीर बेस्ट को। लिफ्ट है जी। उनकी 160 जो बेस्ट लिफ्ट उन्होंने की हुई है। तो हमारे पास भी ऐसे लीजेंड प्लेयर हैं, जैसे नहीं कि हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया में भी प्लेयर हैं हमारे पास बहुत अच्छे जी। और ये बहुत भी इसमें बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। कोई कह रहा है दैट इट्स आई ओपनिंग, कोई कह रहे हैं द कंपैरिजन हाईली मोटिवेट्स एंड अमेजिंग। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर मी जी मैम। आल्सो, वेरी प्राउड। हाँ मैं यस जी ये भी कारण हो सकता है कि पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेशन थोड़ी मतलब जो कम आने के कारण ये भी हो सकते हैं कि इतना हाई स्टैंडर्ड की गेम हो जाती है। लेकिन हमारे प्लेयर, इंडिया की टीम इस काबिल है कि हम किसी भी लेवल पे जाके मेडल लिए हैं पहले, और आगे तो हमारी टीम और भी अमेजिंग है, बहुत अच्छी टीम है। हम कहीं भी किसी भी लेवल पे मेडल लेने के काबिल हैं। और दूसरी बात, जो हमारी पार्टिसिपेशन कम होने के कारण है, जहाँ मूव करने के लिए, मैं सचिन का वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि पावर लिफ्टिंग छोड़ के किसी बाकी गेम में जा रहे हैं, उसकी एक वजह है कि हर गेम में
2 से 3 मेडल के लिए खेल सकता है, और कई गेम में तो जैसे स्विमिंग है उसमें तो 5-6 मेडल के लिए भी खेल सकता है। लेकिन पावर लिफ्टिंग में एक खिलाड़ी एक ही मेडल के लिए खेलेगा। मान लो कि वो ओलंपिक या एशिया गेम कहीं भी जाता है तो उसके पास एक ही चांस है, अगर मिला तो एक ही मेडल मिलेगा, चाहे वो कोई भी, अगर नहीं मिला तो वो एक ही मेडल नहीं मिलेगा। तो ये काम है कि कैटेगरी हमारी सेम है, मतलब कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी के बेस पे हमें अलग अलग कैटेगरी नहीं मिली, और बॉडी वेट दो और बॉडी वेट उठाओ और एक मेडल के लिए खेलो, और उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस अभी आपकी स्लाइड पे दिख रही है वो तो हम देख ही चुके हैं। तो उसके बावजूद हमारी टीम जो है वो क्या परफॉर्म कर चुकी है जी। और यहाँ पे मैं लोगों को भी एक अपील करती हूँ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दैट अब आप देखिए स्विमिंग में अगर आप अच्छे फॉर्म में हैं तो आप 4 से 5 मेडल एक ही इवेंट से लेकर आ सकते हैं, वो एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन बन जाता है। 50 मीटर में मेडल मिला है तो 100 में भी जरूर मिल सकता है, और फिर आगे तो आपका एक फॉर्म बन जाता है एंड यू कैन विन मोर मेडल्स फ्रॉम द सेम कंपटीशन। सिमिलरली एथलेटिक्स में अगर 100 मीटर भी भाग रहा है, 200 पे भी जा रहा है और रिले में भी भाग रहे हैं, 400 भी भाग लिया, तो आप 2 से 3 मेडल लेके लौट सकते हैं। But which means that if our power lifter has won a single medal also, the power lifter in para sports deserves a very high degree of respect and no comparison. I think Thank you, ma'am. Thank you very much. eye-opening thing for us. हम यूं नहीं कह सकते अच्छा मुझे 4 मेडल मिले हैं आपको एक ही मिला है। ये हमारे लिए आपका एक वो कहते हैं ना इसको मैं बाहर की जी मैम, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो जो 4 मेडल दिए है वो उन पे मेहनत नहीं लगी, उन पे भी उनकी उतनी ही मेहनत लगी है। हम बात कर रहे हैं मैम चांस की, कि हमारे पास चांस नहीं होता। बिल्कुल सही है जी मैम। मैडम हम आपसे मोटिवेट होते हैं, हम सबसे आपसे मोटिवेटेड होते हैं। हमने आपके साथ गेम किया है, वेरी रिस्पेक्टफुल मैडम, हमने आपके साथ गेम किया है, बट हम हाईली बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर होते हैं। हमें लोग बात कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हमारे साथ खेलती थी, हमारे साथ खेलती है, और हम आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आपको सैल्यूट है मेरा। थैंक यू, आई एम हैप्पी। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Let's move to the next slide. Yes. जी मैं थोड़ा सा इसके बारे में, जहाँ जो रिकॉर्ड की स्लाइड चल रही थी उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा कि जो पावर लिफ्टिंग जनरल की है उसमें रिकॉर्ड जो है वो 2 तरह के रिकॉर्ड है। एक होता है रॉ रिकॉर्ड, जो हमारे जैसे हम लगाते हैं, एक लूज टी शर्ट पहनी और ऐसे ही बेंच पे लेट गए और उठा दिया, वो एक। दूसरी होती है अक्यूप्ड, जो एक टी शर्ट आती है इंजर की, वो एक स्पेशल होती है जो हमें कम से कम भी 30 से 35 किलो की पुश दे देती है। तो ये जो रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों को इसका वो सर्च भी करेंगे कहीं IPF पे, जहाँ कहीं इंटरनेट पे, उनको लगेगा ये गलत है। तो यो हमारी रॉ या क्लासिक पावर लिफ्टिंग है उनकी, जो हमारे जैसे करते हैं, मतलब एज इट इज, बिना मतलब स्पेशल टी शर्ट के, उसके रिकॉर्ड है ये। और अक्यूप्ड जो होते हैं उसमें ना टेस्ट होता है, ना उनकी जो कॉस्ट्यूम वगैरह वो भी अलग अलग होते हैं, वो पोस्ट दिया जाता है, तो उसके साथ कंपेयर नहीं है। और नेक्स्ट आप जो हमने देखा आज तक की हमारी पावर अचीवमेंट्स जो रही है वो स्क्रीन पे दिख रही है। हमने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं एक, और एशियन गेम में हमारे पास 10 टोटल मेडल है, 5 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। कॉमनवेल्थ में हमारे पास 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है, और टोटल 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल हमारे ओवरऑल हैं, और 3 अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं पावर लिफ्टिंग में, और 20 से ज्यादा स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं हमारे जो पैरा पावर लिफ्टर्स हैं। तो ये मैं इसलिए मेरी कोशिश थी कि कम से कम जो नए प्लेयर है, जो गेम कर रहे हैं, उनको ये थोड़ा बताया जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है। So it's been an amazing eye opener. Of course, आज हमको थोड़ा सा इशू रहा नेटवर्क का, but nonetheless, वो कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going. Any questions for रहेलू जी, पाशा जी, सचिन भी हैं, मुनीश्वर सर अभी रूम में हैं या हम कनेक्टेड हैं? सैंडी सेइंग कि मुनीश्वर सर हमें नहीं दिख रहे हैं मीटिंग रूम में।
Any questions coming forward? आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। एक संजीव संतोष कुमार जी से क्वेश्चन आया है, MQS प्लीज। जो MQS है मैम, वो ऐसे है कि नेशनल गेम के अलग है और इंटरनेशनल के गेम के अलग है। जब भी ये पार्टिसिपेट, जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो नेशनल गेम में नेशनल चैंपियनशिप में फिट करना चाहते हैं तो वो MQS के पास है। जी मैम। जी, एक डायमेंशन का भी क्वेश्चन आया था कि बेंच का डायमेंशन क्या है। जो आपका बेंच प्रेस का बेंच होता है उसका क्या डायमेंशन रहता है? जी मैं बोल नेट पे पढ़ा है, मैं बता दूं। कोई मोटा मोटा या 121 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा बोलेंगे आवाज? जी मैम। हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे। ये जो बेंच का डिस्क्रिप्शन है, ये एक बार दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज चली गई थी। जी, आवाज का इशू है सर। अभी आवाज आ रही है? आपकी आवाज रुक के आ रही है। आज आप अभी कहाँ, गुजरात साई सेंटर से हैं सर अभी कनेक्टेड? हाँ जी, गुजरात में ही है, लेकिन पहले आपके की जो हमारे साई के चलते हैं बहुत सारे वेबिनार लगते हैं। आज ही ऐसा क्यों हुआ पता नहीं मुझे। अभी आ रही है आवाज मैम? आई एम ऑडिबल? हाँ आता है सर, बिल्कुल चली जाती है आवाज, थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाता है। बट मैं थोड़ा हिल ओके, मैं थोड़ा नहीं कोई बात नहीं सर। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस जर्नी। एंड बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बहुत मोटिवेटिंग सेशन था। वी लव्ड इट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेशंस। कुछ सेशंस जनरल भी होंगे, जैसे व्हीलचेयर में एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं, इंजरी मैनेजमेंट कैसे होता है, या एक जनरल सेशन ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये सेशंस भी आगे आएंगे। बट tomorrow we will be joining the para badminton awareness program. So see you all tomorrow. Thank you so much Rajendra Helu sir, Pasha, Sakina, Munishwar sir, Sachin, Jaydeep. We are very proud of you all who have led the journey, who have shown determination, dreaming, discipline, everything. So all the best, and we meet you all tomorrow once again. Thank you so much.